in the service of the nation. The biggest sacrifice that any individual can do is to sacrifice the life, and they have done so. It is most deplorable that Pakistan is resorting to such tactics time and again. Pakistan very clearly has created something called the Resistance Front, TRF. And TRF is nothing but it is an extension of Lashkar-e-Tauba. Before December, it is aim of strategy of ISI to infiltrate maximum terrorists, because after onset of winter, it becomes very difficult for jihadis to cross over to India. So you see, in last complete this year, 27 civilians have been killed, and only from Tuesday till today, 7 civilians have been killed. So if you see the scale of and intensity of killings, it has increased manifold. That is a point of concern. Now the question is that it's my belief that whoever is part of terror structure, that individual or a group, they have to be liquidated. No mercy should be shown. And who are these people who are part of terror structure? Pakistan is the master, followed by Lashkar-e-Tauba, OGWs, overground workers, fundraisers, medicine providers, ammunition providers, arms providers, and those who provide shelter at night and give them food. These are the people who are part of terror structure. Until we cleanse the entire team, until we get rid of the entire terror structure team, these things will continue to happen. They are the source of terrorism. They are the source of jihad. That tap has to be closed. If you want the water of jihad not to enter Jammu and Kashmir, that tap has to be closed for good, forever. And the only way I feel that through intelligence sources, we must hone down, we must have a data bank as to who all are part of this terror structure. And be mercilessly, we should go against them. There's no question of giving them any room or space. They don't deserve it. As Conroy once said, Conroy, who died in Jammu and Kashmir, he said, the fate of jihadis only, they need to be killed, and that's all. So I believe him, I have full faith in that colonel. He did a yeoman service for the nation, and therefore the only recourse is that we have to get rid of anybody and everybody who is part of terror structure. सबसे पहले तो ये जो वीर वीरांगत आत्माओं हैं, उनका मैं नमन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और अपना रेस्पेक्ट पे करता हूँ. दूसरी बात है कि ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे ये जो वीर सिपाही हैं, जेसीओज हैं, ये अपनी आत्म बलिदान इन्होंने दिया है. सबसे बड़ी जो कुर्बानी होती है वो जीवन की कुर्बानी होती है जो उन्होंने दिया है राष्ट्र सेवा में. तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तालिबान पे थोड़ी सी सफलता के बाद उसने बहुत चालाकी से आर्टिकल 370 हटने के बाद वो घबरा गया और उसने टीआरएफ क्रिएट किया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट. और टीआरएफ कुछ नहीं है, वो लश्कर-ए-तौबा का एक्सटेंशन है. पूरा हुकूमत चलता है लश्कर-ए-तौबा का. तो ये जो वारदात हुआ है इसमें टीआरएफ का हाथ है और लश्कर-ए-तौबा ने भी सपोर्ट किया होगा. मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी अपनी सोच ये है कि हम लोग की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो भी टेरर स्ट्रक्चर के सदस्य हैं, आतंकवाद स्ट्रक्चर के सदस्य हैं, आतंकवाद का स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है. स्ट्रक्चर है पाकिस्तान आका है, जो फंड प्रोवाइडर्स हैं, जो दवाई देते हैं, सप्लाई करते हैं, जो हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, रात को शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक आउट कर देते हैं कि सेना आ रही है, ऐसे से लोग हैं वो आतंकवाद टेरर स्ट्रक्चर के हिस्सा हैं. इनसे जम्मू एंड कश्मीर को मुक्ति दिलाने की जरूरत है, रूथलेसली. इसमें कोई सॉफ्ट एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई दयालुता के पात्र नहीं है, क्योंकि इन्हीं के कारण वहां के तो लोकल मुसलमान मर रहे हैं ना, ये अपने भाइयों को भी मार रहे हैं. ये कैसी सोच है? तो मेरी अपनी सोच है कि इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से हम यदि डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और डाटाबेस हमारे पास बन जाता है कि वो कौन है और कहां है जो पार्ट ऑफ टेरर स्ट्रक्चर हैं, उनको ध्वस्त करने की जरूरत है. एक खिड़की तोड़ने से घर सुरक्षित नहीं होता, पूरा बिल्डिंग तोड़ना पड़ेगा, नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी. और नई बिल्डिंग कैसा? जहां विश्वास हो, जहां जम्मू एंड कश्मीर में रोजगारी बढ़े, जहां शांति हो, जहां टूरिज्म इंडस्ट्री आए, एप्पल इंडस्ट्री आए, कारपेंटर इंडस्ट्री फ्लरिश करे, ऐसा
वातावरण, ऐसी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले सफाई करने की जरूरत है, टोटल सफाई. यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टेटमेंट ऑफ ग्लोबल टाइम्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चाइना is just nothing but propaganda warfare. Secondly, very strongly Indian Army has commented that China has not acceded to our suggestion. Thirdly, I want you to understand the basic issue. What is the basic issue of problem with China? China believes in Zhonghua. The word is Chinese word, Zhonghua. Zhonghua means China wants to become world power number 1, wants to replace America. China believes in expansionist policy. China sees India as a threat to its hegemony in South Asia, Southeast Asia. And therefore, it is China's strategy to weaken India. Fourthly, China's intentions are not correct with regard to India. If these are the realities, have these realities changed? Have these perceptions changed? Have the strategies changed? No. If nothing has changed, how do you... One more thing I would like to point out. China does not want that LAC should be defined in concrete terms. Why? Because once LAC is defined, line of actual control is defined, that becomes IB, international border. Then any intrusion, any crossing of LAC becomes war. That China does not want. So whenever our foreign minister, Mr. Jaishankar, says, let's define LAC, China says no. This is not the appropriate time. Very cleverly tries to outsmart India. But those days are gone. We are very strong on ground. We have matching capability. Our infrastructure developed under Modi ji's leadership is developing by leaps and bounds. So militarily, we are strong enough to send a very strong message. And we have done so on south sides of Pangong Tso. By occupying mountain heights, we have sent a very clear message to China that India of today is not India of 62. India of today is India of 2021. So I think there's nothing much to worry about, but no round of... You can have 100 rounds of talks. Nothing much will come out of it. This is my belief. China has to be only shown its place militarily, diplomatically and isolated at international level. देखिए, चीन ने जो कहा है कि हिंदुस्तान का जो डिमांड है वो अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये चालाकी है, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का एक स्वरूप है. हिंदुस्तान की सेना ने कहा है कि चीन ने हमारे सुझावों को नहीं माना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बहुत कड़े शब्दों में हिंदुस्तान की सेना ने कहा है, बहुत सही कहा है. तीसरी बात, जो मुख्य बिंदु है वो आपको समझने की जरूरत है. समस्या कहां है? समस्या इस तरह से है, चीन माओ से तुंग के जमाने से एक कॉन्सेप्ट में विश्वास करता है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है जोंगुआ. जोंगुआ का मतलब हुआ, चाइनीज शब्द है, जोंगुआ मतलब कि चीन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बने. चीन विस्तारवाद में विश्वास करता है. चीन चाहता नहीं कि एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पूरी तरह से परिभाषित हो. मिस्टर जयशंकर ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि टाइम वक्त आ गया है कि एलएसी को परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जाए. चीन तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है तो वो तो आईबी फिक्स हो जाएगा. तो यदि इंट्रूशन चीन करता है तो वायलेशन है, आईबी है, तो लड़ाई वाला सिचुएशन है, वो चीन नहीं चाहता है. तो जब ये सब विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो सवाल यह है कि चीन का नीति और नियत में क्या परिवर्तन होगा. तब नीति और नियत में परिवर्तन नहीं होगा तो जमीनी स्तर पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. चीन वही करता है जो करता रहेगा, जो करता रहा है वही करता रहेगा. तो मेरी अपनी सोच है कि इसका उपाय क्या है. इसकी उपाय यह है कि हमको अपनी मिलिट्री मसल पावर दिखानी पड़ेगी, हमको अपना डिप्लोमेटिक मसल पावर दिखाना पड़ेगा, और चीन को आर्थिक दृष्टिकोण से चीन के पेट में लात मारना पड़ेगा, चीन को डिफेंसिव मोड में रखना पड़ेगा. वो यही भाषा समझता है और कोई भाषा नहीं समझता है. चीन खाली शक्ति की पूजा करता है, उसका सम्मान करता है. गरीब देशों को, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में जो कमजोर देश, उनको तो दबोच लेता है. लेकिन मैं संदेश देना चाहता हूं कि आज का हिंदुस्तान 2021 का हिंदुस्तान है, 1962 का हिंदुस्तान नहीं है. ये चीन को समझना चाहिए. और उसके जो पीएलए ट्रुप्स हैं, चॉकलेट सोल्जर्स, वो हमारे सोल्जर्स के सामने खड़े नहीं हो सकते. वो चॉकलेट सोल्जर्स हैं, वो लड़ नहीं सकते. वो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, 4 साल के लिए सेना में आते हैं. 4 साल में एक सिविलियन, एक सैनिक बन सकता है? कतई नहीं, नेवर. तो ये तो मच्छर है हमारे सामने, लड़ नहीं सकते. तो इसीलिए चीन इस बात से घबराता है और डरता है लड़ने से.
पीएलए ट्रुप्स आकर देखिए, कुछ दिन पिछले की खबर है, पीएलए ट्रुप्स ने जब हिंदुस्तान की सेना आगे बढ़ रही है भाग गए सब, डरते हैं कि बहुत कुटाई होगी। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, हम सक्षम हैं और हम चीन को सबक सिखा सकते हैं।